This video I am going to start exercise 11.1 chapter number 11 class 8th. Chapter number 11 is mensuration, in which we read about the area and perimeter of the 2D figure like square, rectangle, triangles, parallelogram, trapezium, circle, like that. And there is another topic which is surface area and volume of the 3D figures. 3D figures may means cube, cuboid and cylinder. And those who want to go in detail of this chapter, you can watch the introduction video of this chapter, whose link is given in the description box. So let's start. Welcome in Rashmi Gupta maths classes, and the question number 1 is a square and a rectangular field. Here there are two fields. It is a square, it is a rectangle. A square and a rectangular field with measurement as given in the figure. Means जो ये square है, its side is 60 meter and its is 80 meter and breadth is not given here. And it is given that both the figure have the same perimeter. Perimeter of a square, we know that perimeter of square 4 into side means 4 into 60, that is 240 meter. Okay, and same as perimeter of rectangle is 2L plus B, means 2L is given 80 meter plus B is not given. But one thing is given in the question कि both figure have the same perimeter, means according to the question both figure will be 280 plus B is equal to 240, मीन्स दोनों का पैरीमीटर सेम है. अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं. इक्वेशन की तरीके से कर सकते हैं. 80 प्लस B इज इक्वल टू 240 अपॉन 2. इट विल बी 120 एंड B इज इक्वल टू 120 माइनस 80. ये उधर होकर माइनस में जाएगा. इट विल बी 40 मीटर, मीन्स हमें यहाँ पर ब्रेथ मिल गई 40 मीटर. नाउ द क्वेश्चन इज दैट विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया. किस फिगर का एरिया लार्जर है. सो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, मीन्स 60 इंटू 60, दैट इज 3600 मीटर स्क्वायर. एंड द सेम एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल. Area of rectangle is length into breadth. Now we know about the breadth also. It is 40, that is 3200 meter square. And you have to compare that which field has a larger area. So square has a larger area. So it's a very simple question of this exercise. Now come to the question number 2 here. मिस्टर कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट. ये एक स्क्वायर प्लॉट आपको गिवन है. ये मिस्टर कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर. यहाँ पे जो बड़ा वाला प्लॉट है इट इज़ 25 बाई 25. ये एक स्क्वायर प्लॉट है. शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट. अब यहाँ पर उनको ये घर बनाना है इस प्लॉट के मिडिल में. अ गार्डन इज़ डेवलप्ड अराउंड द हाउस. एक गार्डन है जो चारों तरफ डेवलप किया गया है. फाइंड द total cost of developing a garden around the house at the rate of rupees this per meter square. तो ये तो क्लियर है, क्योंकि ये हमें जब गार्डन निकालना होता है तो क्या करेंगे, हम टोटल का एरिया निकालते हैं, हाउस का एरिया निकालते हैं, दोनों को माइनस करते हैं. वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ रिमेनिंग प्लॉट. सो हियर एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट. स्क्वायर प्लॉट मीन्स स्क्वायर फिगर है तो साइड इंटू साइड, and side is here 25 into 25, that is 625 meter square. Okay, same as area of house. जो हाउस उन्हें बनाना है उसका एरिया क्या है, it is 20 meter and it is 15 meter, means it is a rectangular, means L into B. It is 20 into 15, that is it will be 300 meter square. Now अब हमारा रिमेनिंग एरिया ऑफ गार्डन, मीन्स जो रिमेनिंग एरिया ऑफ गार्डन नहीं, जो रिमेनिंग एरिया है वो गार्डन का है. सो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ गार्डन. एरिया ऑफ गार्डन मीन्स 625 माइनस 300. आपने क्या किया, पूरे प्लॉट में से हाउस का एरिया माइनस कर दिया, तो वी विल गेट दिस एरिया ऑफ दिस साइड मीन्स 325 मीटर स्क्वायर.
Now find the total cost of developing a garden around the house at the rate of rupees this per meter square. Means cost of developing a garden पर मीटर स्क्वायर. पर मीटर का मतलब क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹55. Now you have to find out the total cost of developing the garden. So total cost will be what? Total cost of developing a garden, क्योंकि हमें तो इतना गार्डन है 325 मीटर स्क्वायर. You have to multiply. जब 1 के लिए गिवन है और मनी के लिए निकालना है, you have to do the multiply and you get the answer. अब हम इसको एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं बहुत जल्दी से 55 से. एंड द प्रोडक्ट ऑफ 325 इंटू 55 जब हम इसको करते हैं इट विल बी 17,000 रुपीज़, 17,875. तो इट इज़ द टोटल कॉस्ट टू डेवलप अ गार्डन हियर. कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. द शेप ऑफ अ गार्डन इज़ रेक्टेंगुलर इन द मिडिल. एक ये गार्डन है, ये मिडिल से रेक्टेंगुलर है एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड ऑफ द गार्डन. मीन्स जिस तरह से फिगर में शो किया गया एक रेक्टेंगुलर पार्क है और ये साइड में सेमी सर्कुलर फिगर है. फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन. हमें बताना है इस पूरी फिगर का एरिया एंड गार्डन. तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट हियर एरिया. ओके, एरिया हम पहले कैलकुलेट करते हैं. तो इफ़ आई स्प्लिट द फिगर, ये एक मेरा रेक्टेंगल है. ओके, और ये 20 है यहाँ से लेकर यहाँ तक. इफ़ आई सेपरेट दैट, कि मैंने क्या किया, दोनों सेमी सर्कल को इस टाइप से रख दिया, ये मैंने स्प्लिट कर लिया. ओके, एंड इट इज़ व्हाट, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है एंड इट इज़ डायमीटर. डायमीटर इज़ हियर 7 मीटर. तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर अपॉन 2 मीन्स 7/2. हियर 7/2 मीटर मीन्स 3.5 मीटर. तो 3.5 जब हम इस लेंथ में से रेक्टेंगल की लेंथ को मेज़र करेंगे तो क्या होगा? 3.5 इधर से माइनस होगा 3.5, तभी तो हमें ये पता चल पाएगा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ. ये हमें पता है. फ्रॉम हियर इट इज़ 7 मीटर. तो मीन्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो हमारा फर्स्ट फिगर है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी 20 में से 3.5 हमने इधर से माइनस किया, 3.5 इधर से माइनस किया, मीन्स कुल मिला के 7 माइनस किया. इट विल बी 13 मीटर. ओके, 13 मीटर आ गया. नाउ ब्रेथ इज गिवन, ब्रेथ इज 7 मीटर. ओके, तो एरिया हमारा क्या हो गया? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. इट विल बी 13 इंटू 7, दैट इज़ 91 मीटर स्क्वायर. ये हमारा इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया. नाउ ये फिगर और बचा. अब ये दोनों सेमी सर्कल को मिलाकर बन गया एक सर्कल. मीन्स एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट? एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई इज 22/7 एंड आर इज 7/2 इंटू 7/2. ये हमने यहाँ से आर फाइंड की थी तो मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में यहाँ पे रखा है. 7 से 7 कैंसिल आउट, 11, 77/2 एंड इट विल बी 2 3 यहाँ से हम इसको करते हैं 2 3 6, 1 2 8 16, 18.5 मीटर स्क्वायर. तो टोटल एरिया विल बी व्हाट? हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल और सर्कल के एरिया को प्लस कर देंगे. टोटल एरिया विल बी 91 प्लस 91 इस रेक्टेंगल का और ये है 38.5. इट विल बी 0.59, 129 मीटर स्क्वायर इज़ द टोटल एरिया. ठीक है, अब बात करते हैं पेरीमीटर की. सेम एज पेरीमीटर को देखिए. पेरीमीटर में हमें क्या करना है कि जैसे हमारा ये फिगर है, दोबारा से फिगर पर हमें आना होगा. ये फिगर है, अब ये मुझे पता है इट इज़ 13, ये मुझे पता है 13 है ये. और पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री. ये 13, ये 13 मीन्स आई हैव टू नीड दिस. मुझे इसका और फाइंड आउट करना है. तो ये क्या है? फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे. फॉर पेरीमीटर देखिए, ये जब मैंने सर्कल को ऐड किया तो आई नीड दिस मच एंड इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. तो हम क्या करेंगे? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर.
2 इंटू 22/7 एंड 7/2, ये कट हो गया, यहाँ से 22 मीटर विल बी हियर। ओके, अब अगेन आई एम ड्राइंग द फिगर, आपको जिससे क्लियर हो जाए कि ये फिगर है हमारी। ओके, ये मुझे पता है इट इज़ 13 मीटर, जो हमने माइनस करके निकाला है, तो ये भी 13 हो गई, और ये प्लस करके है 22 मीटर, तो टोटल पेरीमीटर विल बी 22, मीन्स दिस एंड दिस 22, 13 प्लस 13, it will be 22 plus 26 means 48 मीटर विल बी द पैरीमीटर ऑफ द टोटल फिगर। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया था, ये हमारा था एरिया एंड इट इज़ द पैरीमीटर ऑफ द गार्डन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। A flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area this? Means एक जैसे ये एक फ्लोर है और हमको पैरेललोग्राम शेप्ड टाइल यहाँ पर इस तरह से लगवानी है एंड इट इज़ द एरिया इज़, ये जो टोटल एरिया है इट इज़ 1080 मीटर स्क्वायर, और हमें टाइल का बेस दिया हुआ है, बेस ऑफ अ टाइल। बेस कैसी है, टाइल कैसी है, पैरेललोग्राम शेप की, तो बेस ऑफ टाइल is 24 centimeter and corresponding height is 10 centimeter. So you can find out the area of one tile, क्योंकि टाइल पैरेललोग्राम शेप की है, we will use the formula B into H, base into height, क्योंकि ये फार्मूला है आपका पैरेललोग्राम का। It will be 240 centimeter square. ओके, नाउ द एरिया ऑफ फ्लोर इज़ गिवन इन मीटर स्क्वायर, तो या तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। टोटल एरिया टू बी कवर्ड इट इज़ 1080 मीटर स्क्वायर, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एरिया ऑफ टाइल है इट इज़ इन सेंटीमीटर स्क्वायर। इट विल बी 1080, और मीटर स्क्वायर से कन्वर्ट करने के लिए हमको कितना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ you have to find out that how many such tiles are required to cover the floor. Now 240 centimeter square area is of one tile. 1 centimeter square area is of 1/240 tile, and 1080 1 2 3 4 centimeter square area will be 1/240 into 1080 means 5 zeros यहाँ पर आ जाएंगी। इसको कट कर लेते हैं, और 2 से 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा 1 2 3 4 2 6 ज़ा 2 3 4 3 2 ज़ा, and it will be 45,000 tiles, 45,000 tiles हमको ज़रूरत होगी उस एरिया को कवर करने के लिए। मैंने कैसे किया है कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया था वो था एक टाइल का, तो मीन्स एक टाइल कवर करेगी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने 1 के लिए निकाला, डिवाइड कर दिया, और हमें इतना एरिया कवर कराना है, तो क्या किया हमने, इसको 1 के लिए इतना है तो मैनी के लिए निकालने के यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई दैट, और इसको हम यहाँ पर आंसर आ गया 45,000। 5 is the ant is moving around a few food pieces of different shape. These are food pieces, okay, scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? किस फूड के लिए उसको लॉन्गर राउंड लेना होगा। राउंड का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया, आंट ने यहाँ तक आया और ऐसे ऐसे इस तरह से राउंड लिया, तो दैट मीन्स हमको बाउंड्री निकालनी है। मीन्स ये हमें क्लियर होना चाहिए कि वी हैव टू फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस। फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड, रिमेंबर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड। ये इन्होंने आपको हिंट दिया हुआ है।
हम ए फिगर के लिए बात करते हैं। ए फिगर में ये 28 है एंड इट इज़ अ सेमी सर्कल। तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल is 2.8 centimeter. Okay, so you can find out the radius d upon 2, that is 2.8 upon 2. Okay, means 1.4 centimeter is the radius. Now you have to find out, जब हमें पैरामीटर निकालना है तो मीन्स हमको क्या चाहिए होगा, इधर का सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का जब हमारा पूरा सर्कल होता है सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, जब सेमी सर्कल है वी विल डिवाइड इट बाई 2 और हमारे पास बचता है पाई आर ओनली। तो पाई आर का मीन्स यहाँ पर क्या हो गया 22/7 इंटू आर, आर इज़ 1.4, कट करते हैं 0.2, इट विल बी 4.4 सेंटीमीटर। तो मीन्स जब हम इस फिगर के लिए डायमीटर फॉलो करेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो पेरीमीटर मीन्स, तो ये है हमारा 4.4 और ये है 2.8। तो टोटल जो राउंड होगा, राउंड 4 फिगर ए, जो आंट राउंड लेगी उसके लिए उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 4.4 सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस प्लस 2.8 सेंटीमीटर जो उसका नीचे है, ये वाला दिस वन। ओके, तो इट विल बी द आंसर 8 4 12 1 कैरी 7.2 सेंटीमीटर जो होगा वो उसका एक राउंड होगा। नाउ कम टू द बी पार्ट। बी पार्ट को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ दोबारा से, लाइक दैट। ओके, एंड इट इज़ 1.5 सेंटीमीटर और इट इज़ अगेन 2.8 सेंटीमीटर। तो ये 1.5 है, ये भी 1.5 हो गया और ये कितना है 2.8, तो इट विल बी ऑल्सो 2.8 सेंटीमीटर। ओके, और ये हमें अब पता है क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं, इट इज़ 4.4। तो हमें क्या करना है 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 प्लस दिस बाउंड्री के लिए। तो राउंड 4 फिगर बी, इट विल बी 1.5 प्लस 1.5 प्लस 2.8 प्लस दिस, क्योंकि आंट ऐसे 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 राउंड लेगी, इट विल बी 4.4। ये हो गया 3 और इट विल बी 8 प्लस 4 12, 1 कैरी 7.2, इट विल बी 10.2 सेंटीमीटर। मीन्स फिगर बी के लिए उसको 10.2 सेंटीमीटर का राउंड लेना पड़ेगा। नाउ कम टू द फिगर 3 सी। सी है हमारा जो फिगर है ये इस टाइप से कुछ, and it is 2 centimeter, it is also 2 centimeter and you have to find out this। ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है 2.8 सेंटीमीटर अगेन, तो ये भी सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल है, ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो राउंड 4 फिगर सी अब हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या था 4.4 प्लस इट इज़ 2, इट इज़ 2, इट विल बी 2 2 4 4 8.4 सेंटीमीटर। एंड द क्वेश्चन इज़ दैट कि कौन सी फिगर के लिए आंट को सबसे ज़्यादा, फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड, सबसे लंबा राउंड किसके लिए लेना होगा। तो फर्स्ट पार्ट था हमारा आंसर 7.2, सेकेंड है 10.2 एंड द थर्ड इज़ 8.4। तो विच वन इज़ ग्रेटर, मीन्स सेकेंड फूड पीस के लिए उसको आंट को ज़्यादा राउंड लेना पड़ेगा। सो आंसर क्या हो गया यहाँ पर फिगर 2। फिगर 2 के लिए उसको ज़्यादा लंबा राउंड आंट को लेना पड़ेगा।